Hello my dear student and welcome to the video on basic concept of electric circuit. I am Chetna Dolse, lecturer of NIT Polytechnic Nagpur. Today I am going to teach unit number 1, that is the electric and magnetic circuit, and subtopic is basic parameter of electric circuit or basic concept of electric circuit. First of all, we discuss learning outcomes. After watching this video, we will able to understand the basic knowledge of electric parameters, and second one is identify the various types of electric circuit parameters. So student, in this topic we will discuss the various types of electric parameters like current, voltage, resistance, capacitor, inductor, etc. स्टूडेंट्स, आई नो दैट ये सारे वर्ड्स आपने सुने हैं, बट इसका एक्चुअल टेक्निकल मीनिंग जैसे डेफिनेशंस, यूनिट्स, सिंबल, ये सारी चीज़ें हमें ये सब्जेक्ट में पढ़ना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल we discuss the definition of current. The basic electrical parameter current. The definition of current is the rate of flow of electrons in a conductor is called as electric current. It is denoted by I and unit is ampere, and formula of current I is equal to V divided by R. So I for current, V for voltage and R for रेजिस्टेंस. करंट यानी क्या होता है? जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जो कंडक्टर से फ्लो होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? करंट. नेक्स्ट डेफिनेशन इज रेजिस्टेंस. डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इज the resistance is the opposition to the flow of electric current in the conductor is called as resistance. It is denoted by R and symbol is this. The unit of resistance is ohm and formula of resistance R is equal to rho L divided by A. R for resistance, rho for it is specific resistance of the material in ohms meter, and L for length of conductor in meter, and A for cross sectional area of conductor in meter square. So हमने अभी जैसे दो डेफिनेशंस पढ़े हैं, करंट एंड रेजिस्टेंस. करंट क्या होता है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर. जो इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर से फ्लो होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? करंट. जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स को अपोज करने के लिए जो इलेक्ट्रिक सर्किट में पैरामीटर होता है उसका नाम है रेजिस्टेंस. यानी करंट को अपोज करने की प्रॉपर्टी किस में है? रेजिस्टेंस में. डियर स्टूडेंट्स, मैं एक डेली रूटीन में हमारा जो एक छोटा सा एग्जांपल होता है वो मैं बताना चाहूँगी. हम स्टूडेंट, हमें पता नहीं होता है कि अच्छी चीज़ क्या है, बुरी चीज़ क्या है. हम इलेक्ट्रॉन्स की तरह एक पाथ में फ़्लो होते जाते हैं, एक कंडक्टर में फ़्लो होते जाते हैं. यहाँ पर हमें अपोज करने वाला कौन होता है? घर में बोलो या फिर कॉलेज में. घर में हमारे रहते हैं पेरेंट्स एंड कॉलेज में होते हैं हमारे टीचर्स. मतलब हमें हर बुरी चीज़ करने से वो रेजिस्ट करते हैं, यानी रेजिस्ट करते हैं यानी अपोज करते हैं, है ना. तो ये अपोज करते हैं, तो अपोज करने की प्रॉपर्टी किस में है? रेजिस्टेंस में. और हमें अपोज, जैसे हमारे पेरेंट्स और टीचर दोनों अपोज करते हैं, मतलब वो रेजिस्टेंस की जगह है एंड हम स्टूडेंट्स करंट की जगह है. तो शायद ये दोनों डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी, आई होप. नेक्स्ट डेफिनेशन वी विल डिस्कस पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस यानी होता है वोल्टेज. तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वोल्टेज? द डिफरेंस in the electric potential at any given 2 points in the electric circuit is known as potential difference, also known as voltage, and it is denoted by V, and unit of voltage is volt, and formula is voltage यानी V equal to I into R. V for voltage, I for current and R for resistance. तो वोल्टेज का क्या फॉर्मूला हो गया या फिर पोटेंशियल डिफरेंस का क्या फॉर्मूला हो गया? V इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस.
Next definition is capacitor. What is the definition of capacitor? It is the defined as the to store the electric energy is known as capacitor. It is denoted by C and symbol is this. Unit of capacitor is farad or microfarad or nanofarad or picofarad. कैपेसिटर क्या होता है? जो इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करके रखता है उसे हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटर. नेक्स्ट डेफिनेशन इज इंडक्टर. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंडक्टर? Inductor is an electronic component to that store electrical energy in the form of magnetic field is known as inductor. It is the simplest form and consists of wire loop or coil. The inductor is directly proportional to the number of turns in the coil and it is denoted by L and symbol is this. And unit of inductor is Henry. तो स्टूडेंट, हमने इंडक्टर की डेफिनेशन क्या पढ़ी है? इंडक्टर इज एन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स टू दैट स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. जैसे हमने कैपेसिटर की डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसमें क्या बोला था कि टू स्टोर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर टू स्टोर द इलेक्ट्रिकल पावर इज नोन एज कैपेसिटर. बट इंडक्टर का जो फंक्शन होता है वो एनर्जी तो स्टोर करके रखता है, लेकिन किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये वर्ड्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेफिनेशन में. ये इंडक्टर और कैपेसिटर की डेफिनेशन हमेशा एग्जाम में आती है 2-2 मार्क्स के लिए, तो इसे अच्छे से लर्न करना है. ठीक है, तो डेफिनेशन ऑफ इंडक्टर क्या रहेगा? इट इज़ द टू स्टोर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ये वर्ड्स अच्छे से याद रखना है. एंड यूनिट इज Henry. Clear है? Okay. Next definition is power. What is the definition of power? The electric power due to voltage as well as current. Second point is it is the defined as the product of voltage and current is called as electric power. The product of voltage and current is known as electric power and it is denoted by P and watt is the unit. The formula of power, P is equal to V into I. P for power, V for voltage and I for current. So power का formula क्या हो गया? Power is equal to voltage and current and unit is watt. Next definition is energy. What is the definition of energy? Electric energy is defined as the product of electric power and time is called energy. Formula of energy. Energy is equal to power into time. हमने definition में क्या लिखा है? Product of electric power and time. तो फॉर्मूला क्या रहेगा एनर्जी का? एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम. प्रीवियस स्लाइड में हमने पावर की डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसमें पावर का क्या फॉर्मूला था? वोल्टेज इनटू करंट. तो यहाँ पर क्या मैं पावर की जगह वोल्टेज इनटू करंट लिख सकती हूँ? और वोल्टेज इनटू करंट यानी पावर, और पावर का यूनिट क्या था? वैट. तो इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है द यूनिट ऑफ पावर इज वैट एंड यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड. तो एनर्जी का यूनिट क्या हो गया? वैट सेकेंड. इसे ही हम क्या बोलते हैं? जूल. तो यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल एंड फॉर्मूला इज E इज इक्वल टू P इंटू टी. पावर का क्या फॉर्मूला पढ़े थे प्रीवियस स्लाइड में? V इंटू आई यानी वोल्टेज इंटू करंट. तो क्या मैं P की जगह यानी पावर की जगह V इंटू आई लिख सकती हूँ? तो इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है वी कैन राइट E इज इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी एंड यूनिट इज जूल. क्लियर है? Next definition is work. What is the definition of work? An electric work is
the work done to transfer a charge from one point to another point is called as work. Hence, work done move a charge of q coulomb through a potential difference of volt. चार्ज को हम किससे डिनोट करते हैं? q से, एंड उसका यूनिट होता है कूलम. पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज, वोल्टेज का यूनिट क्या होता है? वोल्ट. एंड वर्क इज डिनोटेड बाय W एंड यूनिट इज जूल. फॉर्मूला ऑफ वर्क W इज इक्वल टू चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस. मतलब वर्क इज इक्वल टू चार्ज को हम डिनोट करते हैं Q से इंटू पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज यानी V. तो फॉर्मूला बन गया कि W इज इक्वल टू Q इंटू V एंड यूनिट इज जूल. आई होप डियर स्टूडेंट ये सारे डेफिनेशन आपको अच्छे से समझे होंगे. अगर नहीं समझे हैं तो यू कैन आस्क मी एवरी टाइम. थैंक यू.